Welcome to 100 trigonometry problems, and this is part 2. So we have already done question number 1 to 51 and it's time to do question number 52 to 100. I hope you must have seen part 1. It was an interesting session where we discussed 51 problems. If not, do watch it after this particular part. There is no link between that and that lecture and this one. You can watch it after this one also. So let's start with question number 52. So we had already done a similar question like this in part 1. So that's why I'm saying that some questions might be of the same type. So for that, you might for more practice you can refer to that video as well. So sin x plus y divided by sin x minus y is a plus b divided by a minus b. We have to find tan x divided by tan y. So we know componendo and dividendo, which says if we have a by b equals to c by d, numerator plus denominator in numerator, numerator minus denominator in denominator, both in LHS and RHS. So c plus d divided by c minus d. So I'm doing the same thing here. Sin x plus y plus sin x minus y in numerator and sin x plus y minus sin x minus y in denominator. This is equal to a plus b plus a minus b in numerator, a plus b minus a minus b, which is plus b in denominator. Okay, now this is sin x plus y. Let's write the formulas here. Sin x plus y is sin x cos y plus cos x sin y, and your sin x minus y is there with a minor change of minus sign in the middle. Sin x cos y minus cos x sin y. So if I add this two, this will get cancelled. I will be left with 2 times of sin x cos y, and in denominator if I subtract this 2, so if I subtract, then this will get cancelled. Cos x sin y minus of minus, so 2 times of cos x sin y. So this is equal to b and b get cancelled, a and a get cancelled. I will left with 2a divided by 2b. 2 cancel, 2 cancel. Sin by cos is tan x, and move this cos y below sin y, so you will get a tan y in denominator. This is a by b. So this is what we need to find, tan x by tan y. This is equal to a by b, and which is clearly your b option. So basic question, I hope you will you had solved that similar question in part 1. If you had solved this earlier, then this was a cakewalk for you. Question number 53. This is equal to, so I'm opening the bracket, so a square, which is 1, plus b square, which is sin square a, plus c square, which is cos square a, plus 2ab, that means minus 2 sin a, 2bc, that means minus 2 sin a cos a, and 2ac, that means 2 cos a. Okay, so sin square a plus cos square a is 1, 1 plus 1 is 2, and we have minus 2 sin a. Okay, and minus 2, if I take cos a common, I will be left with sin a plus 1 or sin a minus 1. Okay, because I have also taken minus sign common. Now from here, from the entire expression, this is 2 minus 2 sin a. Okay, and this is 2 cos a into sin a minus 1. Okay,
So if I take 2 common in this, I will left with 1 minus sine A. Now if I move this minus sign inside, so I will left with 2 cos A into minus sign goes inside, it converts to 1 minus sine A. Now if I take 2 into 1 minus sine A common from the entire both the terms, then I will left with 1 plus cos A. 1 from here, cos A from here. So 2 into 1 minus sine A into 1 plus cos A, which is your B option. Okay, it was clear. Question number 54. Sine square 5 plus sine square 10 plus sine square 15 plus sine square 20, so on up to sine square 90. Okay. So we know that sine square theta plus sine square 90 minus theta. Now in this, sine 90 minus theta is cos theta. It will be its square. So this will be basically give us cos square theta. So sine square theta plus cos square theta. So basically 1. So whenever you see sine square theta plus sine square 90 minus theta, it will give you 1. So let's see. Sine 90 is 1. Its square will be 1. So write 1 here plus sine square 5 plus sine square 85, that will give you 1. Sine square 10 plus sine square 80, that will also give you a 1. Similarly 15 plus 75, that will give you 1. 20 plus 70, that will give you 1. Then we have 25 plus 65, that will give you 1. 30 plus 60 will give you 1. Then we have 35 plus 55, that will give you 1. 40 plus 50, that will give you 1. Then 45 plus 45, that will give you 1, because sine 45 square, that is half, and cos 45 square, that is also half, so 1. Okay, then we have I think done all this all the work here. So this is basically, now one thing you need to remember that sine square 45 and you are not getting a cos square 45 है. साइन स्क्वायर 45 के साथ cos स्क्वायर 45 नहीं मिल रहा है, तो वहां पे बस साइन स्क्वायर 45 ही आएगा जिसका वैल्यू हाफ है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 प्लस हाफ. यहाँ पे साइन स्क्वायर 45 के साथ cos स्क्वायर 45 नहीं आ रहा है, तो दिस इज 18 प्लस 1 by 2, दिस इज 19 by 2, विच इज योर डी ऑप्शन. देखो 5 के साथ आया ये 1 हमने लिख लिया था. 5 के साथ 85, ये वाला 1 आ गया. 10 वाला आ गया, 15 वाला आ गया, 20 वाला आ गया, 25 वाला आ गया, 30 वाला आ गया, 35 वाला आ गया, 40 वाला आ गया. अब जब ही साइन स्क्वायर 45 आएगा तो उधर हमारे पास कॉस स्क्वायर 45 नहीं है, और उसके बाद वाला तो क्लब हो ही चुका है जो 1 हमें मिला है, तो इसीलिए 9 प्लस हाफ, दिस इज 19 by 2, विच इज योर डी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 55. एक्स गिवन है, वाई गिवन है, एक्स इंटू वाई निकालना है. तो एक्स इंटू वाई क्या हो जाएगा? साइन 70 डिग्री, साइन 50 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और कॉस 80 डिग्री. ठीक है, कॉस 60 का वैल्यू हमें हाफ पता है, ठीक है, और cos 80 sin 10 के इक्वल होगा, क्योंकि cos 80 को हम cos 90 माइनस 10 लिख सकते हैं. cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, तो वहां से वह sin 10 आ गया. फिर sin 50 है हमारे पास और sin 70 है. ठीक है, 1 by 2. sin थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, ये हमने बहुत बार डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में भी. साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन
60 डिग्री प्लस थीटा, ये होता है 1/4 साइन 3 थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 साइन इसका थ्राइस तो 30 डिग्री, तो 1/2 इंटू 1/4 इंटू साइन 30 1/2, तो 4 2 जाए 2 जाए 16, 1/16 विच इज योर ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 56, इस तरह का क्वेश्चन हमने पिछले में डिस्कस किया था जहां पे 3 था। तो हमने वहां पे बताया था कि ये एक ही केस में 4 के इक्वल हो सकता है, क्योंकि साइन अपना मैक्सिमम वैल्यू 1 लेता है और उसी मैक्सिमम वैल्यू पे ही साइन मैक्सिमम वैल्यू 1 लेता है, 1 + 1 + 1 + 1। तो अगर LHS को 4 के इक्वल बनना है तो चारों को इंडिविजुअली 1 के इक्वल होना ही पड़ेगा, और चारों 1 के इक्वल हो रहे हैं मतलब θ1 का वैल्यू, θ2 का वैल्यू, θ3 का वैल्यू और θ4 का वैल्यू चारों को π/2 होना पड़ेगा, क्योंकि साइन π/2 ही तो 1 होता है। अब इसको इसमें रखेंगे तो cos π/2 प्लस cos π/2 प्लस cos π/2 प्लस cos π/2, cos π/2 होता है 0, तो 0 4 बार ऐड करेंगे तो 0 ही मिलेगा, विच इज योर ए ऑप्शन। साइन अपना मैक्सिमम वैल्यू 1 पकड़ता है और तभी 1 पकड़ेगा तभी 1 + 1 + 1 + 1 4 होगा। ये आइडिया हमने यूज किया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 57, cot alpha and cot beta are the roots of the equation with b not equal to 0, then the value of cot alpha plus beta। cot alpha plus beta क्या होता है? cot alpha cot beta -1 divided by cot alpha प्लस कॉट बीटा। एडिशन में कोई चेंज नहीं आता, अल्फा प्लस कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा लिखे या कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा। तो यहाँ पे ये तो बेसिकली क्योंकि कॉट अल्फा कॉट बीटा रूट्स हैं तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है। प्रोडक्ट ऑफ रूट इस इक्वेशन से देखिए c/a आ रहा है, c/a -1। ये तो सम ऑफ रूट है विच इज -b/a, तो c - a डिवाइडेड बाय a डिवाइडेड बाय -b/a, a कैंसिल हो गया, c - a डिवाइडेड बाय -b, ठीक है। ये आ गया हमारे पास c - a डिवाइडेड बाय -b। अब ये किसी ऑप्शन में है क्या? हाँ, यहाँ पे ये ax² + bx + c वाला इक्वेशन नहीं है, यहाँ पे a का वैल्यू बेसिकली 1 है, तो c - 1 डिवाइडेड बाय -b हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर इस माइनस साइन को ऊपर फेंक दें तो 1 - c डिवाइडेड बाय b हो जाएगा, विच इज योर बी ऑप्शन। तो ध्यान यही रखना था कि यहाँ पे ax² + bx + c नहीं था, x² + bx + c था। हमने स्टेप्स ठीक ही किया था, लेकिन a का वैल्यू यहाँ 1 था, इसीलिए आंसर आ गया 1 - c डिवाइडेड बाय b। क्वेश्चन नंबर 58, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है, तो देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए 1/sin 10 -√3 डिवाइडेड बाय cos 10 डिग्री, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, तो sin 10 डिग्री cos 10 डिग्री, cos 10 डिग्री -√3 sin 10 डिग्री, ठीक है। ऊपर में ऐसा करते हैं कि 2 × ½ इस तरह का कुछ कर लेते हैं, ठीक है। और नीचे में 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 sin 10 cos 10, तो उसको बैलेंस करने के लिए एक ½ से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अभी तक हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, ये कैंसिल होके 1 ही हो जाएगा, और cos 10 -√3 sin 10 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान से देखें तो ये हो गया sin 20 हमारे पास, और ये ½ ऊपर जाके 2 बनेगा, ठीक है। इस ½ को ब्रैकेट के अंदर भेज देते हैं, बस 2 बाहर बचा और ये भी 2 गया, तो 2 × 2 4 बचा, ठीक है। नीचे में sin 20 हो गया,
ये अंदर जाएगा तो हाफ कॉस 10 डिग्री माइनस √3/2 साइन 10 डिग्री। ठीक है, अब एक और स्टेप कर लेते हैं। हाफ को हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री कॉस 10 डिग्री माइनस कॉस 30 डिग्री साइन 10 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 20 डिग्री। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी हो जाएगा, मतलब साइन 30 डिग्री माइनस 10 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 20 डिग्री। ये आपको साइन 20 ही बनने वाला है, तो नीचे वाले के साथ कैंसिल होकर हमें आंसर 4 देगा, विच इज योर डी ऑप्शन। ध्यान से देखिए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 59। ये क्वेश्चन बहुत पहले जेईई एडवांस में भी आ चुका है, जब सब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था। तो इसको हम डिग्रीज में चेंज कर दे तो आसानी होगा, क्योंकि 180 डिवाइडेड बाय 18 इज विल गिव यू 10। ठीक है, तो ये साइन बेसिकली हमारे पास लिखा क्या हुआ है, साइन 10 डिग्री के इक्वल्स टू साइन 10, और ये चीज 10 है तो 10 इंटू 5 मतलब साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री। पीछे हमने बताया था कि साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा, दिस गिव्स यू 1/4 साइन 3 थीटा। ठीक है, तो ये हमें क्या दे देगा, थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, तो 1/4 साइन 3 थीटा मतलब 30 डिग्री, 1/4 इंटू 1/2, दिस इज गिविंग यू 1/8, दैट इज योर सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60। बेसिक फॉर्मूला लगाना है। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, कॉस के अंदर माइनस वाला तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है, अच्छा, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस इज योर tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2, विच इज योर ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 61। tan अल्फा प्लस बीटा 2 है, tan अल्फा माइनस बीटा 1 है, tan 2 अल्फा निकालना है। ऐसा क्वेश्चन जेईई मेंस में आ चुका है एक बार। तो tan 2 अल्फा बेसिकली बोलना क्या चाह रहा है कि tan 2 अल्फा को हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, प्लस अल्फा माइनस बीटा, यही तो 2 अल्फा बन जाएगा। अब ये बेसिकली हमने tan a प्लस बी लिखा है, तो वो क्या हो जाता है, tan a मतलब tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan b मतलब tan अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b मतलब tan अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय tan अल्फा माइनस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू गिवन है 2, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू गिवन है 1, 1 माइनस 2 इंटू 1, दिस इज 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2, दिस इज 3 डिवाइडेड बाय माइनस 1, दिस इज माइनस का 1 इंटू 3, दिस इज -3, ए ऑप्शन। ठीक है, बेसिक आइडिया था। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में बना, ये करने के बाद वो 2 अल्फा ही बना, तो tan 2 अल्फा का वैल्यू -3 मिल गया हमें। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, ये भी बेसिक क्वेश्चन है, हमें इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर लेते हैं, तो दिस माइनस दिस, तो cos का पावर 4 थीटा बाई 2 माइनस साइन का पावर 4 थीटा बाई 2। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडिया यूज कर लेते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 1 हो जाएगा। अच्छा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos 2 थीटा, तो जो भी एंगल है उसका ट्वाइस कर देंगे, तो थीटा बाई 2 का ट्वाइस इज थीटा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 63। इन ट्रायंगल PQR एंगल R इज पाई बाई 2। ओके, दैट मीन्स हमें एंगल के तीनों एंगल्स का सम पता होता है, पाई होता है,
तो एंगल आर है पाई बाई टू, दैट मीन्स पी प्लस क्यू प्लस पाई बाई टू इक्वल्स टू पाई। तो यहां से P प्लस क्यू हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई टू विच इज पाई बाई टू। ठीक है, P प्लस क्यू आ गया हमारे पास पाई बाई टू। tan P by 2 and tan Q by 2 are the roots of this equation. Which of the following is correct? P by 2 Q by 2 चाहिए तो थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर दें, तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो P by 2 प्लस Q by 2 is पाई बाई 4। tan ले लेते हैं, tan P by 2 प्लस Q by 2 is tan पाई बाई 4 विच इज 1। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, tan A प्लस tan B is tan A, sorry, tan A plus B is tan A plus tan B divided by 1 minus tan A tan B. This is equal to 1. अब क्योंकि ये रूट्स हैं तो इनका सम क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए के इक्वल। तो इनका सम माइनस बी बाई ए के इक्वल, और इनका प्रोडक्ट यहां से सी बाई ए के इक्वल। दिस इक्वल्स टू 1। तो माइनस बी बाई ए इक्वल्स टू, इसको उधर भेज दे तो ए माइनस सी डिवाइडेड बाई ए हो जाएगा। ठीक है, ए से ए कैंसिल। ठीक है, तो ए से हमने कर दिया कैंसिल, तो सब कुछ को करना है पॉजिटिव, तो इस बी को उधर ले आए, सी को इधर ले आए, सी को इधर ले आए और बी को उधर भेज दे, तो सी इधर आ गया, बी उधर चले गया। ठीक है, तो सी इक्वल्स टू ए प्लस बी आ गया। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 64। जस्ट कुछ ही देर पहले हमने ऐसा क्वेश्चन किया था इसी सेशन में। तो कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, माइनस सीकेंट को हम 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं। अब तो पता ही है क्या करना है, एलसीएम लेंगे तो साइन 20 कॉस 20। ठीक है, √3 कॉस 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री। ठीक है, नीचे में 2 साइन 20 कॉस 20, 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे है, और 2 से जो डिवाइड करेंगे उसको ऊपर भेज देते हैं, तो 2 यहाँ आ गया। ठीक है, और ऊपर के लिए क्या करते हैं, ऊपर हमें इस सब को √3/2 और यहाँ हाफ चाहिए, तो ऐसा करते हैं हाफ लिख लेते हैं और 2, बेसिकली हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया न्यूमरेटर में, तो इंटू √3 कॉस 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री। ठीक है, इस 2 और इस 2 को रख लेते हैं एक साथ, तो 4, और अंदर √3/2 कॉस 20 डिग्री माइनस 1/2 साइन 20 डिग्री। नीचे हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, दैट मीन्स साइन 40, 4 आ गया। अच्छा, √3/2 इज नथिंग बट साइन 60 कॉस 20 माइनस कॉस 60 साइन 20। ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन 40 डिग्री। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी साइन ए माइनस बी, मतलब साइन 60 माइनस 20 दैट विल गिव यू साइन 40 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 40 डिग्री, कैंसिल होके 4 देगा, जो कि हमारा ए ऑप्शन। तो ध्यान से देखिए, बेसिक ही होता है ये क्वेश्चन, एलसीएम लेना होता है और फॉर्मूला क्रिएट करना होता है, बस और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 65 है हमारे पास। इसमें tan 9 डिग्री को ऐसे ही रहने देते हैं, tan 27 को भी ऐसे ही रहने देते हैं। इसको हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री। सिमिलरली इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस 9 डिग्री। तो ये बन गया tan 9 डिग्री tan 27 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, तो ये बन गया cot 27 डिग्री। सिमिलरली ये बन गया cot 9 डिग्री। ठीक है, तो सिमिलर साइन वाले को एक साथ रख लेते हैं, tan 9 प्लस cot 9, और माइनस साइन कॉमन लेके tan 27 डिग्री प्लस cot
27 डिग्री। ठीक है, इसको लिख लेते हैं साइन 9 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 9 डिग्री प्लस कॉस 9 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 9 डिग्री माइनस साइन 27 कॉस 27 कॉस 27 साइन 27। ठीक है, एलसीएम ले तो कॉस 9 डिग्री साइन 9 डिग्री साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 9 डिग्री माइनस यहां भी एलसीएम ले कॉस 27 डिग्री साइन 27 डिग्री साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 27 डिग्री। ऊपर दोनों में 1 बनेगा तो 1 अपॉन कॉस 9 डिग्री साइन 9 डिग्री, ऐसा करते 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं माइनस यहां भी 1 बना कॉस 27 डिग्री साइन 27 डिग्री, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो ये बन गया 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा साइन 18 माइनस 2 डिवाइडेड बाय साइन 54। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना होता है कि टेन थीटा ये हम बार बार करते हैं तो ये रिजल्ट हमें बार बार मिलते रहता है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज 2 अपॉन साइन 2 थीटा। देख ले ध्यान से, इधर चले तो आप ध्यान से देखिए टेन थीटा टेन 9 प्लस कॉट 9 लेके चले थे हम तो 2 अपॉन साइन एंगल का ट्वाइस हमें मिल गया। तो ये रिजल्ट आप याद रख दे तो कुछ स्टेप सिंप्लीफाई हो जाता है इस क्वेश्चन में। अच्छा, साइन 18 का वैल्यू और साइन 54 का वैल्यू बार बार हमें याद करने के लिए बोला जाता है। ये होता है √5 माइनस 1/4 और ये होता है √5 प्लस 1/4। तो इसका यूज कर ले 2 डिवाइडेड बाय √5 माइनस 1, 4 को ऊपर भेज दे माइनस 2 डिवाइडेड बाय √5 प्लस 1, 4 को ऊपर भेज दे। ठीक है, तो 8 बाहर ले ले 1 अपॉन √5 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन √5 प्लस 1, तो 8 बाहर है √5 प्लस 1 माइनस √5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट मीन्स 5 माइनस 1 दैट इज 4। ठीक है, √5 कैंसिल हो गया तो 8 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4 आ गया हमारे पास। ठीक है, √5 प्लस 1 माइनस √5 तो √5 कैंसिल हो गया 2 तो 16/4 विच इज 4, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 66, इस तरह के शायद 2-3 क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में किया था। तो हाँ, हमें निकालना है बेसिकली x प्लस वाई। तो इस फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं, साइन x प्लस वाई इज साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x साइन वाई। इस फॉर्मूला का यूज करने के लिए साइन x और साइन y तो है हमारे पास, कॉस x और कॉस y नहीं है। तो कॉस x निकाल सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर x से, 1 माइनस साइन x कितना है इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/5, 5 माइनस 1 4/5 का रूट तो 2/√5 आ जाएगा। सिमिलरली अगर साइन और क्या चाहिए हमें, ये तो कॉस x निकाल लिया, कॉस y चाहिए √1 माइनस साइन स्क्वायर y √1 माइनस साइन y कितना है इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/10 आएगा, 9/10 का रूट दैट मीन्स 3/√10। बस वैल्यूज का यूज कर ले, अभी जगह भी है हमारे पास। तो साइन x का वैल्यू 1/√5, कॉस y का वैल्यू 3/√10 और प्लस कॉस x का वैल्यू 2/√5 और साइन y का वैल्यू 1/√10। तो 3 + 2 5/√5 इंटू √10 को √5 इंटू √2 लिख सकते हैं। अच्छा, ऊपर जो 5 है उसको भी √5 इंटू √5 लिख सकते हैं, √5 इंटू √5 इंटू √2। कैंसिल कैंसिल कैंसिल, तो हमारे पास बेसिकली साइन x प्लस वाई आया 1/√2 के इक्वल विच इज साइन 45 विच इज π/4, x प्लस वाई π/4 आया
सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 67, अगेन फॉर्मूला यूज करते हैं, साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 साइन के अंदर c माइनस डी बाई टू, तो 5 माइनस 3 2x बाई टू मतलब x, कॉस के अंदर प्लस, तो 5 प्लस 3 8x डिवाइडेड बाई टू दैट इज 4x, कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू मतलब 4x, कॉस के अंदर c माइनस डी बाई टू मतलब x, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, cos 4 कैंसिल, साइन बाई कॉस दिस इज सिंपली 10x, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 105 डिग्री प्लस कॉस 105 डिग्री। तो इस 105 को साइन 90 प्लस 15 लिख सकते हैं प्लस कॉस 105। अब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा जहां पे साइन पॉजिटिव होता है, तो डायरेक्टली हमें यहां से कॉस 15 मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि 90 है तो नाम बदल जाएगा उसके कॉम्प्लीमेंट्री में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव ही होता है। 90 और 270 पे नेम भी चेंज होता है, तो प्लस कॉस 105। अब कॉस सी प्लस कॉस डी वाला फॉर्मूला लगा दे तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू, तो 120 बाई टू मतलब 60, कॉस के अंदर सी माइनस डी बाई टू, तो दिस माइनस दिस, तो ये हमें 90 देगा विथ अ माइनस साइन, ठीक है, इसमें से ये घटाएंगे तो माइनस 90 आएगा डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स माइनस 45, कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा ओनली, तो 2 इंटू हमारे पास मिल जाएगा 1/2 इंटू 1/√2, तो ये कैंसिल हो गया, 1/√2 मिला विच इज योर सी ऑप्शन। एक बार और ध्यान से देख ले, साइन 90 प्लस थीटा इज सिंपली योर कॉस थीटा, तो cos 15 प्लस cos 115, 2 cos c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2, 1/√2 आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला है कि साइन 2 थीटा होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, लेकिन अगर आपको विश्वास ना हो तो 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेकेंड स्क्वायर थीटा, तो इसको 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, और नीचे जो कॉस सेकेंड स्क्वायर थीटा है उसको 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, एक कॉस कैंसिल, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दिस इज साइन 2 थीटा, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 70, tan 54 डिग्री का वैल्यू निकालना है। tan 54 को क्या हम tan 45 डिग्री प्लस 9 डिग्री लिख सकते हैं, इसको खोल देते हैं, तो tan a प्लस बी क्या होता है, tan a मतलब tan 45 प्लस tan 9 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 45 इंटू tan 9 डिग्री, tan 45 1 होता है तो 1 प्लस tan 9 को हम साइन 9 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 9 डिग्री लिख सकते हैं, 1 माइनस ये तो 1 हो गया, इसको लिख सकते हैं साइन 9 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 9 डिग्री, ठीक है, तो cos 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री, ऊपर नीचे cos 9 कैंसिल हो जाएगा, और cos 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री, तो cos 9 प्लस साइन 9 ऊपर, cos 9 माइनस साइन 9 नीचे, ठीक है, ये नहीं होगा शायद, हमारे पास सी ऑप्शन होगा, cos 9 प्लस साइन 9, cos 9 माइनस साइन 9, यहाँ साइन 9 माइनस cos 9 था, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, साइन cos 9 प्लस साइन 9, cos 9 माइनस साइन 9। क्वेश्चन नंबर 71, tan 75 को क्या हम tan 90 माइनस 15 लिख सकते हैं प्लस cot 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, cot 15 हो जाएगा, cot 90 माइनस थीटा इज tan थीटा, तो tan 15 हो जाएगा। tan 15 का वैल्यू हमें याद रहना चाहिए, नहीं तो हम निकाल भी सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, तो 2 माइनस √3 होता है प्लस, अब cot 15 निकालना हो तो 1 अपॉन tan 15 लिख दे, मतलब 1 अपॉन 2 माइनस √3 लिख दे, इसको 2 प्लस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करे तो 2 प्लस √3 ऊपर बचेगा, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 माइनस 3 1 ही हो जाएगा, तो ये 2 प्लस √3 है, ठीक है,
तो √3 कैंसिल, 2 + 2 = 4, बी ऑप्शन। आप चेक भी कर सकते हैं एक वीडियो जिसमें मैंने डिस्कस किया है कि tan 15 का वैल्यू कैसे निकालें। अब tan 15 निकाल लेंगे तो इस तरह से cot 15 निकाला ही जा सकता है, tan 75 भी निकाला जा सकता है और cot 75 भी निकाला जा सकता है। तो कुछ एक वैल्यू आपको पता हो तो 2 3 4 वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। ध्यान से देखें तो एक जगह होगा जहां पे मल्टीप्लिकेशन में cos 90 भी आएगा। अब cos 90 क्योंकि 0 होता है तो सबको खा जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 0 इंटू समथिंग इज 0, तो बी ऑप्शन। क्योंकि बीच में cos 90 आ गया तो ओवरऑल एक्सप्रेशन को वो 0 कर देगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। P का वैल्यू है cosec थीटा माइनस cot थीटा, Q का वैल्यू है 1/cosec थीटा प्लस cot थीटा। हमें क्या सही है ये बताना है। अच्छा, Q को देखते हैं ध्यान से। ये दिया हुआ है 1/cosec थीटा प्लस cot थीटा, ठीक है। इसको अगर ऊपर नीचे cosec थीटा माइनस cot थीटा से हम मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा cosec थीटा माइनस cot थीटा, ऊपर नीचे आ जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, वो तो 1 होता है, ठीक है। तो Q हमारे पास क्या आ गया, cosec थीटा माइनस cot थीटा। क्या ये P के ही इक्वल है, क्योंकि P भी तो यही चीज था। बस हो गया, P इक्वल्स टू Q। क्वेश्चन नंबर 74, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है हमें। तो बस स्क्वायर को ओपन करने के अलावा और कुछ खास ऑप्शन दिख नहीं रहा है। तो a + b का स्क्वायर दैट इज a² + b² मतलब tan स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर बीटा प्लस 2ab तो 2 tan अल्फा tan बीटा, ठीक है, प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan स्क्वायर बीटा माइनस 2 tan अल्फा tan बीटा दूसरे वाले ब्रैकेट से माइनस सीकेंड स्क्वायर अल्फा सीकेंड स्क्वायर बीटा। ये तो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं हम, क्या इस दोनों से सीकेंड स्क्वायर अल्फा बन जाएगा, ठीक है। 1 + tan स्क्वायर अल्फा सीकेंड स्क्वायर अल्फा प्लस हमारे पास बस अब ये दोनों टर्म बच गया, ठीक है। तो इस दोनों टर्म में अगर हम tan स्क्वायर बीटा कॉमन ले लें, ठीक है, तो बस यहाँ से 1 और यहाँ से tan स्क्वायर अल्फा मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो ये है हमारे पास सीकेंड स्क्वायर अल्फा प्लस सीकेंड स्क्वायर अल्फा प्लस ये 1 + tan स्क्वायर अल्फा हो गया सीकेंड स्क्वायर अल्फा, तो सीकेंड स्क्वायर अल्फा इंटू tan स्क्वायर बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सीकेंड स्क्वायर अल्फा कॉमन ले ले अगर दोनों में से, तो 1 + tan स्क्वायर बीटा आएगा विच इज सीकेंड स्क्वायर अल्फा इंटू सीकेंड स्क्वायर बीटा। ये हमने इतना एक्सप्रेशन सॉल्व किया तो हमें ये मिला, और दिस माइनस दिस सेम क्वांटिटी है तो 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है हमारे पास, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस इस सब का वैल्यू निकालना है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस 2 साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। कॉस अल्फा साइन बीटा तो गया, इस दोनों को ऐड करेंगे तो 2 साइन अल्फा कॉस बीटा मिलेगा माइनस 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, सेम क्वांटिटी है, सब्ट्रैक्ट होके 0 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 76, 2 tan अल्फा इक्वल्स टू 3 tan बीटा इक्वल्स टू 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan a माइनस बी। तो यहाँ से tan a का वैल्यू 1/2 मिल गया और tan b का वैल्यू 1/3 मिल गया।
tan A माइनस बी निकालेंगे तो tan A विच इज हाफ माइनस tan B विच इज 1/3, 1 प्लस tan A tan B 1/2 इंटू 1/3, तो ये आ जाएगा 6 LCM 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 6 प्लस 1 7/6, 6 कैंसिल, हमारे पास यहाँ पे 1/7 आ जाएगा विच इज योर सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 77 है cot a/2 माइनस tan a/2 का वैल्यू निकालना है। cot a/2 को हम लिख सकते हैं cos a/2 डिवाइडेड बाय sin a/2 माइनस इसको लिख सकते हैं sin a/2 डिवाइडेड बाय cos a/2। एलसीएम लेंगे sin a/2 cos a/2 cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। ऊपर में cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया विच इज cos 2 थीटा, तो cos इसका ट्वाइस विच इज a। नीचे में अगर हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो ये चीज पूरा क्या बन जाएगा, ऊपर 2 आ गया, ये चीज पूरा बन जाएगा 2 साइन थीटा cos थीटा इज साइन 2 थीटा मतलब साइन a। ठीक है, cos a बाई साइन a होता है cot a, तो 2 टाइम्स cot a, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 78 cot a प्लस कोसिक a का वैल्यू निकालना है। cot a को हम लिख सकते हैं cos a डिवाइडेड बाई साइन a, इसको लिख सकते हैं 1/sin a, बन गया 1 प्लस cos a डिवाइडेड बाई साइन a। 1 प्लस cos थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा 2 साइन a/2 cos a/2, 2 से 2 हो गया कैंसिल, एक cos हो गया कैंसिल, cos बाई साइन तो cot a/2 आ गया विच इज योर बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 79 है हमारे पास व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 80 प्लस cos 40 माइनस cos 20। इसमें cos c प्लस cos d वाला फॉर्मूला लगा दे तो 2 cos c प्लस d बाई 2, तो 120/2 मतलब 60, cos के अंदर दिस माइनस दिस बाई 2, तो ये आ जाएगा 80 माइनस 40 इज 40 डिवाइडेड बाई 2 मतलब cos 20 माइनस cos 20 डिग्री 2 इंटू cos 60 का वैल्यू हाफ इंटू cos 20 माइनस cos 20, तो cos 20 माइनस cos 20 इज 0 विच इज योर सी ऑप्शन। नंबर 80 what is the value of tan 25 into tan 15 plus tan 15 into tan 50 degree plus tan 25 into tan 50। तो एक चीज देख लेते हैं कि अगर हमारे पास a प्लस बी का वैल्यू π/2 हो, ठीक है, a प्लस बी इक्वल्स टू π/2, या फिर a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि यहाँ 3 एंगल का बात हो रहा है, तो a प्लस बी प्लस सी π/2 है, तो a प्लस बी हो जाएगा π/2 माइनस सी, दोनों तरफ tan ले ले तो tan a प्लस बी इज tan π/2 माइनस सी, ये हो जाएगा tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b इक्वल्स टू cot c, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b इक्वल्स टू 1/tan c, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो tan c मल्टीप्लाई हो जाएगा tan a प्लस tan b से इक्वल्स टू 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, तो यहां से tan a tan c प्लस tan b tan c, इसको भी इधर ले आए तो प्लस tan a tan b दिस इक्वल्स टू 1। तो अगर एंगल्स का सम π/2 है तो इसका वैल्यू 1 आता है। यहां पे 3 है हमारे पास 25 15 और 50, ठीक है, ए बी, ठीक है, बी सी, ठीक है, और सी ए। तो
25 प्लस 15 प्लस 50 अगर करें तो 75 और 15 ये 90 डिग्री आ रहा है, तीनों एंगल्स का सम, मतलब tan A tan C प्लस tan B tan C प्लस tan A tan B जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगा। तो इस केस में भी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस रिजल्ट को अगर याद रखते तो क्वेश्चन आराम से हो जाता हमारा। क्वेश्चन नंबर 81, इफ tan थीटा इज दिस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। तो जो tan थीटा है हमारे पास, अगर हम RHS में cos 17 से थ्रू आउट डिवाइड कर दे तो 1 माइनस tan 17 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 17 हो जाएगा, इंटू 1 भी लिख दे। तो tan थीटा इक्वल्स, इसको हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री माइनस tan 17 डिग्री 1 प्लस tan 17 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री। tan थीटा इक्वल्स टू RHS बन गया हमारा tan 45 माइनस 17 डिग्री, तो tan थीटा इक्वल्स टू tan 28 डिग्री, थीटा कम्स आउट टू बी 28 डिग्री, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 82, हमें पता है कि sin 3x होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, और cos 3x होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ठीक है, sin 3x है हमारे पास, ठीक है, प्लस cos 3x है। इसमें अगर माइनस साइन कॉमन ले लें इस दोनों में भी अगर माइनस साइन कॉमन ले लें तो 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x आ जाएगा। ठीक है, तो sin 3x प्लस cos 3x, ये चीज क्या हमारे पास sin 3x है विथ अ माइनस साइन, cos 3x विथ अ माइनस साइन, 0, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 83, 8 cos 10 cos 20 cos 40 का वैल्यू निकालना है। cos में ये चीज होता है कि cos थीटा इंटू cos 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू cos 60 डिग्री प्लस थीटा इज 1/4 cos 3 थीटा। क्या वैसा सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि थीटा अगर इसको माने तो ये 60 माइनस थीटा है, लेकिन 60 प्लस थीटा प्रेजेंट नहीं है, तो उसको ले आते हैं। तो 8 cos 10 डिग्री cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री cos 80 डिग्री अपने तरफ से लिख लेते हैं, लेकिन उसे डिवाइड भी कर देते हैं ताकि कोई फर्क ना पड़े। cos 80 सेम है sin 10 को, कि cos 80 को हम cos 90 माइनस 10 डिग्री लिख सकते हैं। cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, तो sin 10 डिग्री। इसको उठा के यहां पे इसके नीचे ले आते हैं 8 cos 10 डिग्री डिवाइडेड बाय, क्योंकि cos 80 sin 10 ही है तो यहां पे लिख देते हैं। अब देखें cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा, तो 1/4 cos 3 थीटा, मतलब 20 का थ्राइस 60 डिग्री। अच्छा, तो ये आ गया 8 इंटू 1/4 इंटू इसका हाफ, और ये तो आ गया cot 10 डिग्री, cot 10 डिग्री इज योर आंसर, which is your B ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 84, cos 48 माइनस cos 12, तो cos C माइनस cos D होता है -2 sin C प्लस D/2, मतलब 60/2 sin C माइनस D/2, मतलब 36/2, मतलब 18, -2 sin 30 का वैल्यू हाफ, sin 18 का वैल्यू √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4, ये हो जाएगा 1 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 4, बी ऑप्शन। इफ cot alpha and cot beta are the roots of the equation this, what is the value of cot alpha plus beta? cot alpha प्लस बीटा हो जाएगा cot बीटा cot alpha -1 डिवाइडेड बाय cot बीटा प्लस cot alpha। ऊपर प्रोडक्ट है, ये तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है हमारे पास,
तो प्रोडक्ट ऑफ रूट यहां से 2 डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा, -1, और नीचे सम ऑफ रूट विच इज -b/a मतलब 3, तो 2 - 1 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 1/3 विच इज योर बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 86, tan a का वैल्यू गिवन है, cos 2a निकालना है। तो cos 2a होता है 1 - tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर a। तो 1 - tan स्क्वायर है मतलब 1/49 डिवाइडेड बाय 1 + 1/49, ये हो जाएगा 48/49 डिवाइडेड बाय 50/49, 49 कैंसिल, 2 से ऊपर नीचे कैंसिल कर दे तो 24/25 ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 87, tan x का वैल्यू गिवन है, x सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो sin x cos x का वैल्यू निकालना है। वैल्यू निकालना है sin x cos x का, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे तो ऊपर आ जाएगा sin 2x डिवाइडेड बाई 2। अब sin 2x का वैल्यू हमें पता है, वो होता है 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर x, ठीक है। तो 2 × tan x का वैल्यू -3/4, 1 प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा 9/16, तो -6/4 और ये 25/16, तो -6/4 × 16/25 -24/25, ठीक है। जो कि ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि ये तो sin 2x का वैल्यू है, हमें तो निकालना है sin x cos x, जो कि बेसिकली sin 2x/2 है। तो -24/25 × हाफ, तो ये आ जाएगा -12/25, तो डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, कोजेक के अंदर ऐसा लिख सकते हैं हम कि पाई प्लस पाई बाई 6, 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाई 6 हो जाएगा। सीकेंड के अंदर इसको लिख सकते हैं 2 पाई माइनस पाई बाई 3, 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाई 3 हो जाएगा। तो सभी पॉजिटिव, साइन और कॉजेक पॉजिटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव, कॉस और सीकेंड पॉजिटिव। तो पाई प्लस पाई बाई 6 आ जाएगा हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में होता है कॉजेक निगेटिव, तो एक माइनस साइन, और कॉजेक पाई बाई 6। 2 पाई मतलब 360 माइनस पाई बाई 3, यहाँ पे कॉस और सीकेंड पॉजिटिव होता है, तो सीकेंड पाई बाई 3। अब पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री पे इसका वैल्यू साइन 30 डिग्री होता है हमारे पास हाफ, तो कोजेक 30 डिग्री हो जाएगा 2, तो -2। अच्छा, ये हमारे पास कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो सीकेंड 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 2, तो ये -4 आ गया, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, हमें ये चीज पता होना चाहिए कि tan थीटा इंटू tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज 1, क्योंकि ये तो cot थीटा हो जाता है, तो tan थीटा इंटू cot थीटा 1। तो tan 31 tan 59 के साथ 1 बनाएगा, 33 बनाएगा हमारे पास 57 के साथ 1। सिमिलरली 35 जो है वो 55 के साथ 1 बनाएगा। ऐसे करते करते 1 बनता जाएगा हमारे पास, और इसके बाद क्या आएगा 37 वो 53 के साथ बनाएगा, देन 39 वो 51 के साथ बनाएगा, देन हमारे पास आएगा 41 वो शायद 49 के साथ बनाए, और उसके बाद 43 वो बनाएगा 43
47 के साथ बनाएगा और tan 45 तो 1 होता ही है, तो अल्टीमेटली हमारे पास 1 × 1 कुछ टाइम्स आएगा, लेकिन वो मैटर नहीं करता, अल्टीमेटली आंसर 1 ही आएगा, विच इज आवर सी ऑप्शन. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग? साइन 24 प्लस कॉस 66, साइन 24 माइनस कॉस 66. तो साइन ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर 24 माइनस कॉस स्क्वायर 66, तो साइन स्क्वायर 24 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 24 डिग्री, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो ये साइन स्क्वायर 24 आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर 24 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 24 डिग्री, दिस विल गिव यू 0, बी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 91. 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा. इसको ऐसे लिख लेते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, इसका स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर. ठीक है, माइनस साइन एक बाहर निकाल ले, अगले स्टेप में कर लेते हैं. ये तो आ गया tan स्क्वायर थीटा, एक माइनस साइन बाहर ले ले, तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. ठीक है, इसको इसके नीचे लिख लिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, इसका स्क्वायर. ये कैंसिल हो गया, माइनस tan थीटा बना अंदर, उसका स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा आएगा. ठीक है, बीच में माइनस साइन है यहाँ पे, तो tan स्क्वायर थीटा बाहर था माइनस tan स्क्वायर थीटा अंदर, दिस विल गिव यू 0, ए ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 92. अगेन साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा. ठीक है, साइन थीटा इधर आया एलसीएम, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, इधर कॉस थीटा आएगा प्लस साइन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा. इसको a माने और 1 को b, तो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा. यह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा. ये 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू 1. शायद क्लास 10th एनसीईआरटी में भी है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 93. 3 cos थीटा इक्वल्स टू 4 साइन थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 45 प्लस थीटा? तो tan 45 डिग्री प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा tan 45 विच इज 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 45 1 tan थीटा, तो 1 माइनस 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा, यहाँ से tan थीटा निकाल सकते हैं. कॉस थीटा को उधर ले जाए तो 3/4 इक्वल्स टू tan थीटा हो जाएगा, तो 1 प्लस 3/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/4, तो 7/4 डिवाइडेड बाय 1/4, तो 7 आंसर आ जाएगा विच इज योर बी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 94. द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन. अगर हमारे पास log x बेस a k के इक्वल है, तो इसको हटाना हो तो ये a जो है इसके बेस में चले जाता है, x इक्वल्स टू a पावर के. सेम चीज यहां होगा, यहां से हमें मिल जाएगा साइन x इक्वल्स टू कॉस x का पावर 1, मतलब सिंपली साइन x इक्वल्स टू कॉस x, और 0 to π/2 के बीच में साइन x इक्वल्स टू कॉस x कब होता है, π/4, मतलब 45 डिग्री पे, सी ऑप्शन.
क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 5 पाई बाई 12? ठीक है, तो साइन 5 पाई बाई 12 180 डिवाइडेड बाई 12 पहले देख लेते कितना होता है। 6012 15 डिग्री इंटू 5 तो 75 डिग्री। साइन 75 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो ऐसा करते हैं साइन 30 प्लस 45। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन 30 कॉस 45 प्लस कॉस 30 साइन 45 हाफ 1/√2 प्लस √3/2 इंटू 1/√2, तो 2√2 आया और 1 प्लस √3 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2√2। √2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे तो ऊपर आ जाएगा √2 और √3 इंटू √2 इज √6। इसको √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4, तो √2 प्लस √6 डिवाइडेड बाई 4 विच इज योर बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 10 माइनस साइन 10 डिवाइडेड बाय cos 10 प्लस साइन 10? इसमें हम cos 10 से थ्रू आउट ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो 1 माइनस tan 10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 10 इंटू 1 लिख देते हैं। अब 1 की जगह पे tan 45 लिख देते हैं, माइनस tan 10 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 45 इंटू tan 10। tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b इज tan a माइनस b, मतलब tan 45 माइनस 10 दैट मीन्स tan 35 डिग्री, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 1110 डिग्री? तो 360 इंटू 3 कितना होता है? 900 और 180। तो ऐसा कर लेते हैं कि इसको लिख देते हैं साइन 360 इंटू 3, तो वो हो जाएगा 1080 प्लस 30। अब हमें पता है कि साइन 2n पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा, तो इसको हटा देते हैं, डायरेक्टली लिख देंगे साइन 30। साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ। क्वेश्चन नंबर 98, तो हमें पता होना चाहिए कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बेसिक आइडिया पता है तो हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, क्योंकि ये लिखा हुआ √2 प्लस √2 प्लस √, इसमें अगर 2 कॉमन ले ले तो 1 प्लस कॉस 4a लिखा हुआ है। इस आइडिया से 1 प्लस कॉस 4a को कॉस स्क्वायर 2a लिख सकते हैं। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर 2a, सॉरी, तो 2 कॉस स्क्वायर 2a इंटू 2, तो 4 कॉस स्क्वायर 2a, फोर कॉस स्क्वायर 2a। ठीक है, इसको बाहर निकालेंगे तो 4 बन जाएगा 2। ठीक है, और कॉस स्क्वायर 2a बन जाएगा कॉस a, √2 प्लस √2 प्लस ये बन जाएगा 2 कॉस 2a। अगेन इसमें हम 2 को ले सकते हैं कॉमन, 1 प्लस कॉस 2a, तो 2 कॉस स्क्वायर a हो जाएगा ये इंटू 2, तो 4 कॉस स्क्वायर a, तो ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर a, यहाँ पे प्लस साइन, तो 4 बाहर निकलेगा 2 बनेगा, कॉस स्क्वायर a बाहर निकलेगा कॉस a बनेगा, तो √2 प्लस 2 कॉस a, 2 कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस कॉस a, तो ये बन जाएगा √2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर, एंगल का हाफ a/2, तो 4 बाहर निकलेगा 2 के फॉर्म में और ये बाहर निकलेगा कॉस a/2, 2 कॉस a/2, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 99, सेम क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 36 में भी मिल जाएगा। सेम सिमिलर अप्रोच का क्वेश्चन है, 49 मिनट 2 सेकेंड पे आप देख सकते हैं पार्ट 1 में। तो सीकेंट a प्लस tan a p है, तो वैल्यू ऑफ साइन a निकालना है। हमें पता है कि सीकेंट स्क्वायर a
माइनस टेन स्क्वायर ए, ये होता है 1। इसको लिख सकते हैं सीकेंट ए प्लस टेन ए इंटू सीकेंट ए माइनस टेन ए, दिस इक्वल्स टू 1। प्लस वाले का वैल्यू p दिया हुआ है तो इंटू सीकेंट ए माइनस टेन ए, दिस इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से सीकेंट ए माइनस टेन ए का वैल्यू 1/p मिल गया, और हमें सीकेंट ए प्लस टेन ए का वैल्यू ऑलरेडी मालूम है विच इज p। ऐड कर दें, 2 सीकेंट ए का वैल्यू p प्लस 1/p मिल गया, मतलब सीकेंट ए का वैल्यू p प्लस 1/p डिवाइडेड बाई 2। ट्राइंगल बना ले एक, सीकेंट ए मतलब हाइपोटेन्यूस p प्लस 1/t, p प्लस 1/p डिवाइडेड बाई बेस विच इज 2। तो ये बन जाएगा h स्क्वायर मतलब p प्लस 1/p का होल स्क्वायर माइनस 2। तो ये क्या है, p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर प्लस 2 इंटू p इंटू 1/p, वो 2 बनेगा, ठीक है। एक सेकेंड, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो प्लस 2 माइनस 4, तो ये बन गया p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर माइनस 2। इसको p माइनस 1/p का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बाहर आएगा p माइनस 1/b के फॉर्म में। तो हमें परपेंडिकुलर में मिल गया, हमें चाहिए क्या, साइन a, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब p माइनस 1/p डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस क्या है, p प्लस 1/p, p स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई p स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई p कैंसिल हो गया, p स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई p स्क्वायर प्लस 1, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 100, इफ साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y इक्वल्स टू 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट x प्लस y। तो साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर y को उधर भेज दे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर y, तो साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर y, दैट मीन्स साइन x इक्वल्स टू कॉस y। सिमिलरली अगर साइन स्क्वायर y को उधर ही रहने दे, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर x को उधर भेज दे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर y इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर x, तो साइन y इक्वल्स टू कॉस x आ गया यहां से। कॉट x प्लस y निकालना है, तो ये हो जाएगा कॉट y कॉट x माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट y प्लस कॉट x, ठीक है। अच्छा, तो यहां से इस वाले से हम बोल सकते हैं कि साइन x इक्वल्स टू कॉस y है, तो इसको एक और स्टेप कर लेते हैं, कॉस y डिवाइडेड बाय साइन y मल्टीप्लाइड बाय कॉस x डिवाइडेड बाय साइन x माइनस 1, और नीचे कॉस y डिवाइडेड बाय साइन y प्लस कॉस x डिवाइडेड बाय साइन x। ध्यान से देखिए, कॉस y और साइन x दोनों इक्वल हैं, ठीक है, तो उन दोनों का रेशियो हमें 1 देगा। सिमिलरली कॉस x और साइन y भी इक्वल है, तो इन दोनों का रेशियो भी 1 देगा। तो बेसिकली न्यूमरेटर में 1 माइनस 1 आ गया, डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, लेट्स से दैट क्वांटिटी जो भी है, बॉक्स लिख देते हैं उसको, तो ऊपर 0 आ गया, 0 बाय बॉक्स हमें 0 ही मिलेगा, तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ गया। तो इसी के साथ हमने 100 क्वेश्चंस पूरे कर लिए 51 क्वेश्चन पार्ट 1 में, और यहाँ पे बचे हुए क्वेश्चंस ध्यान से पार्ट 1 मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद।